11. How are you all? A very good morning to all of you. Myself, Dr. Harsh Bhardwaj, your chemistry professor. First of all, stay home, stay safe, because if you are safe, everyone is safe. Today, I will start with chapter number 1 of chemistry, class 11, that is some basic concept of chemistry. In this topic, I start with the definition of chemistry, the branch of science which deals with composition of matter as well as physical and chemical properties of matter is considered as chemistry. It means इस branch के अंदर हम लोग different matter like gases, solids and liquids की properties, physical properties, chemical properties और उनके composition के बारे में पढ़ेंगे. Let's start with the branches. There are 4 main branches of chemistry. The first one is inorganic chemistry. The second one is organic. Third one is physical and fourth one is analytical. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप उन कंपाउंड्स को कंसीडर करते हैं जिनमें कार्बन की अमाउंट नेग्लिजिबल है या बहुत कम है. फॉर एग्जांपल, वी कंसीडर ZnS, वी कंसीडर NaCl एंड many more. But in organic chemistry, we mainly deal with those compounds in which the percentage of carbon is very high. Example, ethanol, as you know, C2H5OH, acetic acid, and many more. But in physical chemistry, physics is related, and we deals with some physical processes like change in state. Solid का liquid में change होना, liquid का gas में change होना, किसी का temperature increase होना, thermodynamics, states of matter. Mainly physical chemistry में states of matter, thermodynamics इस टाइप के टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे. Now the analytical chemistry. In analytical chemistry, we deal with analysis. Generally, it is also known as practical chemistry. Analysis means we are analyzing some data with the help of any experiment on any practical. So we can also say that it is also known as practical chemistry. So these are the 4 main branches of chemistry. Now, importance of chemistry. Chemistry is very important in every aspect of life. I start my day with toothbrush and toothpaste. The toothpaste is generally a chemical, है ना, made of calcium hydroxide, magnesium hydroxide. उसके अंदर मेन होता है जो आपके टूथब्रश के ब्रशेस होते हैं वो भी आपके पॉलीमर हैं, और वो पॉलीमर भी नाइलॉन के पॉलीमर्स हैं जो कि आपके केमिस्ट्री की वजह से बनते हैं. 12th क्लास में हम नाइलॉन पढ़ेंगे. सिमिलरली द फर्स्ट इज इन एग्रीकल्चर. In agriculture, all the spray and all the insecticides are chemicals. It means agriculture, खेती बाड़ी, तो इसके अंदर आप लोग जितने भी स्प्रे करते हैं कीड़ों को मारने के लिए या फिर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, those all are chemical. This is the main. The second one is in health. अब आपको पता होगा कोरोना वायरस आजकल फैल रहा है, तो कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बन रही है. That is all chemicals. तो जितनी भी बीमारियां हैं उनके क्योर के लिए, उनके डायग्नोज के लिए जो हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं. एज यू नो, बुखार के लिए दवाई कौन सी होती है? पैरासीटामोल. पैरासीटामोल इज आल्सो ए केमिकल. So this is the main in health. The third one is in industrial area. In industries, chemicals are very very important. अगर आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, सीमेंट की बात करते हैं, तो सिलिका इज द मेन कंपोनेंट, दैट इज SiO2. इसके अलावा सीमेंट के अंदर आपके एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के कंपोनेंट भी होते हैं. सेकंड, अगर आप लोग लेदर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लेदर को क्लीन करने के लिए टैनिन सॉल्यूशन बनाया जाता है. टैनिन सॉल्यूशन इज आल्सो ए केमिकल. अगर आप पेपर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पेपर जो है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज. तो ट्रीज तो ब्राउन कलर के हैं, उनको कलर डीकलराइज करने के लिए जो केमिकल ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, दोज आर केमिकल्स. सिमिलरली उनको प्लेन करने के लिए हम जनरली NaOH यूज करते हैं. जो आपका कागज है उसे हम प्लेन बनाने के लिए NaOH को यूज करते हैं. Many other industries like paint industry, like rubber industry, like leather industry, paper industry, textile industry, जो colors होते हैं उन सभी के अंदर आपके पास chemicals और chemistry is very much important. The fourth one is in sneaking pollution. Pollution को कम करने में, no doubt pollution को बढ़ाने में भी chemistry और chemicals है, but हम लोग इसे कम करने के लिए भी बहुत सारे नए केमिकल्स बना रहे हैं. Those chemicals which are used in decreasing the pollution of the environment are considered as green compounds, and similarly green chemistry उसी से related है. आपको पता होगा CNG आजकल यूज हो रही है.
CNG is compressed natural gas which polluting the environment very slowly, है ना। तो इस मीन्स इसी टाइप से हमने और केमिकल बनाए H2O2। हम पहले जो यूज कर रहे हैं आपके डीकलराइजिंग एजेंट, अब उनकी जगह H2O2 यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग H2O2 की बात करते हैं तो H2O2 को अगर आप तोड़ेंगे तो इट विल गिव 2 molecule of H2O and O2। तो in many project we are using H2O2 that is हाइड्रोजन peroxide, क्योंकि इसकी पोल्यूशन को बढ़ाने की जो पावर है वो बहुत 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 कम है, या ये बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करता। तो इनको हम ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। Our next topic is nature of matter. There are two type of nature, that is physical and chemical. On the basis of physical classification, the matter can be divided into solid, liquid and gases. इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं और उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए अगर आप सॉलिड में पार्टिकल बनाएंगे वो बिल्कुल पास पास होंगे, लिक्विड में थोड़े से दूर दूर होंगे, लेकिन गैसेस के अंदर पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं एज देयर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस आर वेरी वीक। ये सिंपल बात है, क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड और जो गैसेस हैं वो हम लोग 7th 8th क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। Now the next is chemical classification. In chemical classification, there are two types. The first one is pure substance, and the second one is mixture. Pure substance means it is pure and it is single substance, and mixture it is formed by the combination of two or more than two substances. Now the first is the pure substances can also be pure substances can further classified into elements as well as into compounds. Element can be defined as a pure substance which can neither be divided or nor be created with any other substance. It means ये purest form है जिसको हम किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं बना सकते और इसको हम आगे फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल H2 is element, H2 gas, O2 gas, N2 gas, similarly many other examples. But अगर बात करते हैं कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स आर आल्सो प्योर सब्सटेंस बट they are formed due to the combination of two or more than two elements. एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल बच्चे इसके लिए एक्सेप्ट नहीं करते कि सर ये तो मिक्सचर है। एग्जाम्पल NaCl। अब आप कहेंगे कि NaCl प्योर नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें तो दो चीजें हैं, एक Na और एक Cl। लेकिन अगर आप बात करते हैं NaCl की, एज यू नो NaCl इज सॉल्ट, तो अगर मैं आपके सामने नमक ला के रख देता हूँ तो क्या आप बता सकते हैं कि सर NaCl में ये रहा Na और ये रहा Cl? इट मीन्स आफ्टर कंबाइनिंग they have no identification of their different identities. It means अगर आप बात करते हैं NaCl के अंदर Na कहाँ है और Cl कहाँ है, ये मैं बता नहीं सकता। अब कंपाउंड्स को हम दो टाइप में बांट सकते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, जो कि मैंने आपको भी पढ़ा दिया। इनऑर्गेनिक में दोज कंपाउंड विल बी कंसीडर इन विच कार्बन इज इन नेग्लिजिबल अमाउंट और कार्बन इज इन और कार्बन इज एब्सेंट। बट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक C2H5OH, CNG की आप बात कर रहे थे, मीथेन गैस, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो दिस इज द मेन क्लासिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट इज मिक्सचर। मिक्सचर इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। मिक्सचर का भी आगे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ये भी दो टाइप का है। द फर्स्ट वन इज होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मीन्स इन दिस मिक्सचर द फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन इन ऑल द पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज सेम। इस मिक्सचर की अगर आप बात करते हैं तो इसमें मिक्स होने के बाद में आपके पास में दोनों का केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम हो जाएगा। एग्जांपल वाटर एंड सॉल्ट। क्या पानी में नमक डालने के बाद कहीं अलग अलग दिखता है? तो इट मीन्स इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर। बट इफ आई एम मिक्सिंग सैंड इन वाटर और शुगर इन सॉल्ट, तो इट मीन्स दे आर डिफरेंट, दैट इज हेट्रोजीनस। In heterogeneous mixture, physical and chemical composition in all the part is not same. So this is the main topic. There are two type of nature of matter. On the basis of physical classification, we can classify them as solid, liquid and gas. And on the basis of chemical classification, we can divide into pure substance as well as mixture. Pure substances are of two type, that is element and compounds. Compound can further classified into inorganic and organic compounds. And after it mixtures are formed due to the combination of two or more than two compounds. There are two type of mixture. First one is homogeneous
and the second one is heterogeneous. Our next topic is units of measurement. There are four systems to explain the units. The first one is CGS system, that is centimeter, gram, second system. The second one is FPS, foot, pound, and second system. The third one is MK system, meter, kilogram, second system. But nowadays we considered SI system. SI system means standard international units. तो हमारे पास जो सिलेबस में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, द फर्स्ट वन इज मीटर. मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. केजी, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास. सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम. एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट. केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड कैंडेला इज यूनिट ऑफ intensity. And at the last, mole. Mole is the unit of amount, in which we consider mass as well as volume and the number of particles. इसे हम आगे पढ़ेंगे जरूर सिलेबस के अंदर, क्योंकि ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज मोल कंसेप्ट. नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. एज यू नो 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम और 10�6 मिलीग्राम. अगर आप इसे रिवर्स कर देते हैं तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम और 10⁻6 ग्राम. अगर विद ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो उससे अपने वेट कहेंगे, बिकॉज weight is considered as the force exerted by the gravity. But if you are considering a particular matter, then it will be mass. The total composition of matter is considered as mass. Now the second is temperature. Temperature can be calculated in degree centigrade, Kelvin, as well as in degree Fahrenheit. हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, बाहर का टेम्परेचर कितना है, अरे गर्मी बहुत है, 40 डिग्री प्लस हो गए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस हो गए. बट अगर बुखार की बात करते हैं तो बुखार को या फीवर को मेजर किया जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट में. बट इन केमिस्ट्री वी यूज केल्विन स्केल फॉर द न्यूमेरिकल्स एंड फॉर अवर कैलकुलेशंस. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑल यूनिट्स? तो डिग्री सेंटीग्रेड की अगर आप बात करते हैं तो केल्विन को अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो आपको 273.15 को ऐड करना पड़ेगा डिग्री सेंटीग्रेड. एग्जाम्पल, इफ आई एम कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन, I have to add 273.15. Now the answer is 298.15. Approximately we can consider 298 Kelvin, क्योंकि 0.15 जो है वो कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम देगा, इसीलिए हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 298 कैलकुलेट कर सकते हैं. Now what is the relationship between डिग्री फ़ारेनहाइट? डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर बात करते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर आप लोग बात करते हैं किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करना, एग्जांपल 25 डिग्री को, देन 9/5 इंटू 25 प्लस 32. 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 9 5 45, 45 प्लस 32. इट मीन्स 40 and 30 70, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. These are the two simplest units. The first one is mass and the second one is temperature. Next is density. Density is D and it is the ratio of mass and volume. Mass can be calculated in kg while the volume is in meter cube. As you know, length into breadth into height, that is meter cube. Or in small unit, it will be gram per centimeter cube. The next is velocity. V is equal to density, distance covered by a particular object in a particular time, that is distance upon time, that is meter upon second. The second one is acceleration, velocity upon time, that is meter upon second square. The next one is force. Force is equal to m into a, mass into acceleration. Mass is kg, acceleration is meter upon second square, that is also known as Newton. ये आप लोगों ने पिछली छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है. एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज मीटर स्क्वायर. नाउ द मेन इज वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, दैट इज मीटर इनटू मीटर, और वी कैन से दैट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब. तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान में देना पड़ेगा. आई कैन राइट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और 100 सेंटीमीटर into 100 centimeter into 100 centimeter. It means 1 meter cube is equal to 10⁶ centimeter cube. तो this is the volume. Volume अगर आप बात करते हैं तो मेन रिलेशनशिप आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 1 मीटर क्यूब में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं. लेकिन अगर बात करें वॉल्यूम की, जैसे हम लोग दूध वगैरह लेके आते हैं, हम तो केजी में किलो लीटर में लेके आते हैं लीटर,
है ना, लीटर मिलीलीटर, एग्जाम्पल हाफ लीटर मीन्स 500 ml. There is one unit more for the volume, that is liter and milliliter. Then learn for this, 1 centimeter cube is equal to 1 milliliter. But in 1 liter there is 1000 ml. अगर 1000 ml है तो इस रिलेशनशिप के हिसाब से 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे. ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है. 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और सिमिलरली 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं. It means now I am relating meter cube with liter. In 1 meter cube there are 10 raised to power 6 सेंटीमीटर क्यूब. अगर आप 1000 को हटा देते हैं तो यहाँ पर 6 है, 6 से 3 कट जाएगा. It means 10 raised to power 3 liter. In 1 meter cube 10 raised to power 3 liter are present. Now my next unit is, I think शायद pressure है. बिल्कुल. What is pressure? Pressure is force applied on a particular area. Force upon area. What is force? Force is M into A upon area. Mass is kg. A is meter upon second square. And now here is meter square. Okay? तो ये कट जाएगा आपका. अब आपके पास रह जाएगा kg upon meter into second square. अगर आप लोग अदर यूनिट्स की बात करते हैं तो प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड इन एटमॉस्फेयर, प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड इन पास्कल एज वेल एज इट इज कैलकुलेटेड इन बार. तो 3 मेन यूनिट्स हैं. एक आपके पास में है एटमॉस्फेयर, एक आपके पास में बार और एक आपके पास में है पास्कल, और एक है मिलीमीटर ऑफ मरकरी. जनरली आप लोगों ने इसको देखा होगा कहाँ पर, जब डॉक्टर ब्लड प्रेशर के लिए, हाँ जी, आपकी बाजू के ऊपर वो स्टेग्नोमीटर के लिए बांधता है और उसके बाद जब वो आपके इस प्रेशर के लिए पंप करता है तो आपने एक मीटर देखा होगा जिसमें एक मरकरी ऊपर की तरफ राइज करता है. दैट इज मिलीमीटर ऑफ मरकरी. तो आपको याद क्या करना है कि 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं. दैट इज 1.01 बार. इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है. और 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. तो इट मीन्स इन 1 एटमॉस्फेयर देयर इज 1.01 bar and 760 millimeter of mercury and 10 raised to power 5 Pascal. This is the relationship of this is the relationship for pressure. So these are the main units and this is our first topic regarding the introduction of chemistry. Thank you very much. Have a nice day.